ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जो कौन कौन गुनाहगार है ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। इंसाफ दिया जाए। जिस तरह से असम्बली में भी आज आवाज़ उठाई गई है कि जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने ये पॉइज़न इसी एक आम शख्स सेंट्री वर्कर के हाथ में ये पहुंचा दिया है, उन ज़िम्मेदारान को पूछा जाए। आज मुझे अफसोस के साथ ये भी बात कहनी पड़ रही है, यहाँ ही हमारे बहुत सारे सियासतदान और हमारे सियासी समाजी लोग भी आज इस गमज़दा ख़ानदानों के सर पर मुसल्लत होकर अपने अपना बिज़नेस जमाए हुए बैठे हैं। कोई अपनी कुर्सी के रोने रो रहा है। खुदारा इस कौम का सोचा जाए, हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं। नाजरीन, आप सबकी सलामती हो। इस वक्त मैं किला साहब सिंह में हाफसाबाद में मौजूद हूँ। जिस तरह आपने देखा कि 8 बच्चों ने जहरीली मिठाई खाई, जिसमें से 3 बच्चे इस दुनिया फ़ानी पर नहीं रहे। 3 बच्चों की डेथ हो जाती है। और आज मैं इस मुतासरा ख़ानदान में पहुँचा हूँ और हकीकत क्या है, क्या वजूहात हैं, मिठाई बच्चों ने कैसे खाई और इस गली में इस रिक्शे तक मिठाई कैसे पहुँची, पहुँचाने वाले कौन हैं, आज असल हकीकत से आपको आगाह करने जा रहे हैं कि असल मामलात इसमें हैं क्या। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ना हमारे जो बच्चे की डेथ हुई है, हमें उनके लिए इंसाफ चाहिए। जी, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਉਹ ਅੰਜੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਲਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇhtiyat ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਫਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਗੀਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ आप समझते हैं कि इंतज़ामिया की गफलत से ये सारा कुछ हुआ है? हाँ जी जी सर, इंतज़ामिया की गफलत से भी हुआ है, लेकिन थोड़ा जिहा बच्चों ਨੂੰ ਵੀ ਇhtiyat ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ कराया जाए। आप कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आपको पता है कि सेंट्री वर्करों की ड्यूटी क्या है। आप बताइएगा कि जो हाफसाबाद ज़िले में जितने भी सेंट्री वर्कर हैं, जितने आपके अंडर हैं, उनकी ड्यूटी क्या कुत्ते मारना है? नहीं नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਚੁੱਕ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। कुत्ते मारना तो ड्यूटी ਜੀ नहीं, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ मारना ड्यूटी करी है। ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਫਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਗਫਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦਵਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਫਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਰਲਾਣੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਮੋਏ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੰਜੀ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ डिप्टी कमिश्नर साहब ਅੱਗੇ भी अपील करने हैं। इस मौका पर जितने लोग हमें देख रहे हैं, ख़ासतौर पे इंतज़ामिया के, ज़िला इंतज़ामिया के, उन्हें मैसेज क्या देना चाहते हैं? मसीह के ज़िंदा और जलाली बबरकत नाम में सबसे पहले मैं जलाल टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि मेरे आबाई इलाके हाफिज़ाबाद में हमारे साथ इस दुख की घड़ी में शरीक हैं। मैं देख रहा हूँ कि 13 तारीख की शाम को जब ये इंसिडेंट हुआ है, हमारे नाहक 6-8 बच्चों के साथ ये जहरीली मिठाई खाने से उनमें से 3 की उसी मौके के ऊपर जब डेथ हुई है, और 5 जो है पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए हैं, और उसके बाद ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन के तावन की वजह से, और बिलखसूस सबसे ज़्यादा जो उसी वक्त से इसहाक मसीह खोखर साहब जो शहीन बल्दियाती फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं और इस इलाके की शान और आन है। और मुझे ये फ़ख्र है ये नहीं कि इनके फेस के ऊपर खुरम भाई कि ये अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं और हमेशा हक़ और सच के ऊपर बात करते हैं। अभी जो आपने बात की है इंतज़ामिया के लिए मैसेज क्या है और अपनी कौम के लिए मैसेज क्या है, यहाँ पे आते हैं 2 नुकात आते हैं। अगर मैं FIR को देखूँ तो उसके मुताबिक मैं भी बता देता हूँ, और अगर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसके बारे में भी बता दूँ, और स्पेशली जो हाफिज़ाबाद की इंतज़ामिया से हट के, इंतज़ामिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हाफिज़ाबाद में कुछ शैतानी अनासिर टोला हैं जो कि इस केस को ख़राब करना चाहते हैं, जो कि इत्तफाक को तोड़ना चाहते हैं। कैसे ख़राब करना मैं चाह आपको रहे हैं? बताता हूँ। वो ख़राब इस तरह से करना चाहते हैं कि वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, वो यूनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरी ये उनसे गुजारिश है कि जब ये सानिया हुआ है, हम सबको मिल बैठ के और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना है कि इंसाफ दिया जाए। जिस तरह से असम्बली में भी आज आवाज़ उठाई गई है कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये पॉइज़न इसी एक आम शख्स सेंट्री वर्कर के हाथ में ये पहुंचा दिया है, उन ज़िम्मेदारान को पूछा जाए, जबकि सेंट्री वर्कर्स के पास किसी किस्म का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, इख्तियार भी नहीं है, ना इनको किसी किस्म का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट इनके हाथ में है। और इंतज़ामिया से यही अपील की जाती है कि आइंदा ये पॉइज़न जैसी चीज़ों से आप किसी भी लाइफ स्टॉक को ख़त्म ना करें। इसका जिस तरह से पहले भी गुफ्तगू में बात हुई है कि इसको आप जो है वो ज़िंदा पकड़ के किसी ऐसे इलाके में लेके जाएं, इनकी फार्मिंग करें या जो भी। सर देखें, हाई कोर्ट की जजमेंट पड़ी हुई है जिसमें बताया गया है कि आप कुत्तों को नहीं पॉइजन दे सकते, नहीं मार सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो जजमेंट है उसके ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, और इसके अगर तो हमारे पास ऑर्डर सामने आ जाते हैं, अगर उन ऑर्डर्स के जिनके हाई कोर्ट की जो जजमेंट के बाद इन्होंने अगर कोई ऑर्डर करके तो ये कुत्ता मार मुहिम की है, तो फिर वो ज़िम्मेदारान है, जो भी ज़िम्मेदारान है उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। क्या समझते हैं कि जबकि मुहिम चलवाने वाले अभी कौन है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने दोबारा से हाई कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ जाके आर्डर दिए? साहब ये तो जब तक मेरे पास कोई लेटर नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब कोई नोटिफिकेशन हवा में बात नहीं करनी चाहिए, जब तक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, जब तक मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे हकीकत के ऊपर मबनी की बात को देख नहीं देता, तस्दीक नहीं कर सकता, तो वक्त से पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता। थैंक यू सर। आप बताइएगा लास्ट पे, कुछ अर्सा पहले आपकी मैनेजमेंट से, इंतज़ामिया से बातचीत चल रही थी कि आप लोग जो हैं, ये जो कुत्ता मार आपकी मुहिम है, ये सिस्टम है, ये खुदारा हम मसीहियों के हाथ से, सेंट्री वर्करों से आप दूर रखें, तो उस पर इंतज़ामिया ने क्यों गौर-खोस नहीं किया था? इंतज़ामिया ने बिल्कुल किया है, इंतज़ामिया ने रोकया है सेंट्री वर्करां नूं ना दिओ, पर फिर भी जेडे ने ना गफलत कर गए ने जेडे डॉक्टर ने। देखिए सर, अगर इंतज़ामिया ने रोका हुआ है हाँ, तो रोका फिर ये आर्डर जारी करने वाले कौन हैं? किसने ऑर्डर दिया डॉक्टर नहीं को? चल रहा है कोई भी, रिटर्न में नहीं है। नहीं वैसे वर्बली वैसे ड्यूटी कर जुबानी ज़बानी कलामी। जी। और ये 13 तारीख को इस शहर में
कोई कुत्ते मरे भी हैं या फिर ये बस रिक्शा यहाँ तक ही पहुँचा है? 6 कुत्ते मरे ने 6 कुत्ते मरे हैं उसके बाद वो रिक्शा इस साइड पे आया। जी इस साइड पे। वैसे कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि ये डॉक्टरों की ड्यूटी है कुत्ते को मारना, अगर जी, जी। अगर कानून पास ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਹੈ। नाजरीन, जो वाक़ये की तफसीलात थी उससे आपको आगाह कर दिया गया। मेन चीज़ थी, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ पोस्टें लगा रहे हैं, लेकिन बग़ैर किसी तस्दीक के ये बातचीत की जा रही थी। आज इस मौका पर आना, लोगों से गुफ्तगू करना, इस बात की तस्दीक है कि बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो हमारे साथ तावन कर रही है, लेकिन दूसरी जानब हम एज़ मीडिया पर्सन देखें तो एक यही चीज़ें, सवालात जो हैं बहुत सारे जन्म ले रहे हैं कि फिर आर्डर किसने जारी किए, हॉस्पिटल अमले को, डॉक्टरों को किसने कहा कि आप सेंट्री वर्करों से ये कुत्ता मार मुहिम का हिस्सा बने और ख़ुद आप पॉइज़न जो है वो इस तरह किसी मीठी चीज़ में मिलाएं और उसके बाद आप जाकर सेंट्री वर्कर की ड्यूटी लगा दें, जो कि ड्यूटी बनती थी डॉक्टरों की। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक आपको बता दूं कि इस सारे वक़ुआ में 2 डॉक्टर गिरफ़्तार हैं और जो सेंट्री वर्कर था, रिक्शा ड्राइवर भी था, रिक्शा भी चिंग भी चलाता था बेचारा हफ्साबाद में, वो भी इसी सानिया की नज़र होकर वो भी गिरफ़्तार है। और इससे पहले जो इंतज़ामिया की तरफ से FIR दर्ज की जाती है, यहाँ से ही 5 मुद्दई उठते हैं जो कि उस FIR के मुद्दई बनते हैं और उनकी तरफ से कुछ बयानात दिए जाते हैं कि हमने देखा है कि कोई 2 रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो बच्चों में ये चीज़ें बर्फ़ी मिठाई वगैरह तकसीम कर रहे हैं, जिससे बच्चों की डेथ हो जाती है। लेकिन अभी जब हम वक़ुआ पर पहुँचे, चीज़ों की तय में गए, तो ये चीज़ें FIR जो दर्ज हो चुकी हैं उससे हट कर हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ आज डिप्टी कमिश्नर साहब से, CM पंजाब से, खुदारा इस वाक़ये पर प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई जाए, चीज़ों की तय तक जाया जाए। आज तो मसीहियों के बच्चे इस जुल्म का शिकार बने हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी कम्युनिटी के नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो इसी तरह के किसी हादसात का शिकार बने। जो सेंट्री वर्कर हैं, खुदारा उनसे बस सेंट्री का ही काम लिया जाए, ना कि सिर्फ जो डॉक्टरों की ड्यूटी है, महकमे की ड्यूटी है, वो भी इनसे करवाई जाए। होता पता है क्या है कि अगर किसी को फांसी देनी होती है तो क्या कहते हैं कि बंदा क्रिश्चियन होना चाहिए, जलाद जड़ा है गले च फंदा पाने वाला क्रिश्चियन होना चाहिए, मसीही होना चाहिए। लेकिन इसी तरह वही माइंड सेट इन डॉक्टरों का बना हुआ है कि जो कुत्ता मार मुहिम में बंदे होने चाहिए वो क्रिश्चियन होने चाहिए, जो कुत्ते मारने चाहिए वो क्रिश्चियन सेंट्री वर्करों का काम है। वर्करों का काम जिस तरह चेयरमैन साहब ने हमें बता दिया है, वो अगर कोई मर गया है, इन्होंने मार दिया है तो उठाना है, ना कि सिर्फ वर्करों का काम ये है कि आपने पॉइज़न भी खुद मिक्स करना है मिठाई में, आपने डॉक्टरों के पास से लेकर भी आना है, आगे आपने जाके महल्लों में कुत्तों को भी डालना है। ये सरासर मैं समझता हूँ कि ये महकमे की गफलत है। तो इसमें इंतज़ामिया इनिशिएटिव ले ताकि ये तमाम तर जो गमज़दा ख़ानदान हैं इन्हें इंसाफ मिल सके, इन्हें इंसाफ मिल सके। आज हमारे सुबह के वक्त एक मीडिया पर्सन भाई पहुँचे, उन्होंने आके कुछ तफसीलात से लोगों को आगाह किया, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। मेन हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों के आगे रखने की ज़रूरत है। बाकी के जो 5 बच्चे लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, कुछ ही देर में वहाँ भी जाएंगे। बच्चे अभी किस हालत में हैं, 1-2 बच्चे की वीडियो मुझ तक पहुँची है, बच्चे हंस खेल रहे हैं, बच्चे खुशो खुरम हैं, अभी रिकवर हो रहे हैं। उन बच्चों के साथ भी आपको मिलाया जाएगा और मज़ीद जो वाक़े की तफसीलात है उससे भी आपको आगाह किया जाएगा।